نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر ہیں ہم سیزن 2، اور اس بار پاکستان کے مختلف علاقوں سے ٹیمز ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، جن کے درمیان یہ شاندار مقابلے جاری و ساری ہے. یہ مقابلے کسی نمبر کے لیے نہیں بلکہ ایک بابرکت اور مبارک مقدس سفر کے لیے ہوتے ہیں. بڑی ہی خوبصورت جرنی ہے، ایک ایسی جرنی کہ جس کی تمنا کروڑ عاشقان رسول اپنے دلوں میں بسائے رکھتے ہیں. جی ہاں، میری مراد عمرہ کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں جو مقابلہ کروایا جاتا ہے وہ عمرہ اسٹیپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے. دو مختلف ٹیمز ہیں کہ جن کو اپنے عمرہ اسٹیپس کمپلیٹ کرنے ہیں. 3 خوبصورت سیگمنٹ ہوتے ہیں جن میں اپنا یہ مقابلہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں میں سے جو ٹیم آخری اسٹیپ تک پہنچ جائے گی، پہلے پہنچے گی، وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم قرار پائے گی. اور جو ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی انشاءاللہ وہ ہمارے اگلے مقابلے کے لیے سلیکٹ ہو جائے گی. تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، یا آپ کے کوئی ایسے جاننے والے جو حج و عمرہ کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ پروگرام کافی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمرہ کے ایک ایک اسٹیپ کو بہت ہی کلوز آپ کو دکھایا جائے اور ان کی معلومات بھی آپ تک پہنچائی جائے. آج کی جو دو ٹیمیں ہیں وہ ہیں پاک پتن شریف اور مانسہرہ کی ٹیم. جو دونوں ٹیمیں انشاءاللہ ہمارے منچ پر موجود ہیں، جن کے درمیان آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا. آئیے بلا تاخیر ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف اور بڑھتے ہیں کون کون سے سیگمنٹس آج کے مقابلے میں شامل ہوں گے. جی جناب، 3 خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہوگا اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، دوسرا سیگمنٹ ہوگا مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. انشاءاللہ ان 3 خوبصورت سیگمنٹس پر اللہ نے چاہا تو آج کا یہ مقابلہ ہوگا. آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ، نام ہے جس کا اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، بدکار کو پھر روزہ محبوب دکھا دے، بدکار کو پھر روزہ محبوب دکھا دے. آمین آمین آمین. بہت پیاری دعا ہے. کاش ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اسی سال حج کا کوئی ایسا سبب بنا دے کہ پھر ایک بار انشاءاللہ خانہ کعبہ کا خوب جی بھر کے طواف کیا جائے. 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. پاک پتن شریف سے ٹیم آئی ہے اور مانسہرہ کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں اسلامی بھائی کون ہیں، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. پاک پتن کی ٹیم اپنا تعارف کروائے. میرا نام علی حیدر اتاری، میرے والد کا نام علی شیر. میں نورپور کا رہائشی ہوں اور جامعۃ المدینہ پاک وطن میں 7th ایئر یعنی 7ویں سال کا طالب علم ہوں. ارے واہ ماشاءاللہ، دورۃ الحدیث میں ہیں ماشاءاللہ. جی
मेरा नाम गुलाम हैदर अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना पाक पतन शरीफ से दौरातुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मकसूद अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना पाक पतन से दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जनाब, पाक पतन शरीफ से टीम तशरीफ लाई है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शहर है जो आज हमारे साथ मुकाबले में शामिल है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ, देखते हैं कौन है, क्या करते हैं। मेरा नाम अमार अली है और मेरे वालिद साहब नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना मानसरा में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, मानसेरा में भी आपकी हमारी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना कायम कर चुकी है और वहाँ से भी टीम आज हमारे मुकाबले में आई है। जामियातुल मदीना के स्टूडेंट हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद मीर अफजल है। मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना मानसरा में क्लास 5th ईयर यानी दर्जा खामिसा का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहसिन अली शाह है। मेरे वालिद साहब का नाम औरंगज़ेब शाह है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना मानसरा में क्लास 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह, दोनों टीमों का हमने तारुफ लिया है नाजरीन। अब दोनों टीम्स के दरमियान तो ये मुकाबला होगा, लेकिन पिछला हमारा जो मुकाबला हुआ वो कैसा था, कौन सी टीम आगे बढ़ी, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम हाजिर हैं हम सीजन 2 लिए एक मर्तबा फिर आपके दरमियान मौजूद हैं। आज हमारा चौथा मुकाबला है। हमारे पिछले 3 मुकाबलों में जो पीछे रह जाने वाली टीम्स थी, उन तीनों टीमों के दरमियान इंशाल्लाह आज का ये मुकाबला होगा। जो टीम आज के उम्रा स्टेप्स को तीनों में से पहले कंप्लीट कर लेगी वही हमारे प्रोग्राम की आज की विनर टीम होगी। पहला सेगमेंट है जनाब, अल्लाह मिले हज की इसी साल सआदत। सूरे अनकबूत आयत नंबर 49। जवाब ये किस से दिया है जनाब। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। चंद अश्क नदामत के है ज़ाद सफर मेरा, चंद अश्क नदामत के है ज़ाद सफर मेला, पल्ले में इबादत का कोई ना खजीना, पल्ले में इबादत का कोई ना खजीना है। जवाब दुरुस्त दिया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे खूबसूरत सेगमेंट की तरफ। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, नाम है जिसका तवाफ़े खाना-ए काबा। बताइए, नियत करने के बाद कितनी बार तलबिया पढ़ना लाजमी है? नियत करने के बाद 1 मरतबा तलबिया पढ़ना लाजमी है। शेर मुकम्मल कीजिए। मुस्तजारो मुस्तजाब बीरे जमजम और मताफ और हतीम पाक के दोनों किनारों को सलाम। टीम एबटाबाद सवाल का दुरुस्त जवाब देकर आज का मुकाबला जीत चुकी है जनाब। जी नाजरीन, पिछले मुकाबले में टीम एबटाबाद बाजी ले गई थी। आज भी 2 टीमें हमारे दरमियान मौजूद हैं, टीम पाकपतन या टीम मानसेरा। दोनों में से कौन सी टीम बाजी ले जाती है और हकीकी उम्रा टिकट हासिल करने में अपना एक स्टेप फॉरवर्ड करती है, ये तो हमें प्रोग्राम ही बताएगा, मुकाबला ही बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट। 2 टीमों के दरमियान पहले राउंड का मुकाबला होगा। आप दोनों टीम्स अपने एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर दीजिए ताकि पहले राउंड का मुकाबला किया जा सके। याद रहे नाजरीन, पहले राउंड में जीतने वाली टीम को हम फर्जी वीजा दिया करते हैं, क्योंकि अगर सफर करना है तो सबसे पहले तैयारी वीजा की करनी होती है। हमने फर्जी वीजा, हमने एक बाकायदा एक जर्नी का माहौल बनाया है कि अगर हम सफर का इरादा रखते हैं, सफर कर रहे हैं, तो अब हमें किन किन मराहिल से गुजरना है। पहले राउंड का रिवार्ड आपको मिलेगा आरजी फर्जी वीजा। ठीक है, आप में से कौन आएगा पाकपतन? हुसैन, मकसूद हुसैन। मकसूद हुसैन भाई जी, आ जाइए मकसूद हुसैन भाई जी। टीम मानसेरा, आप में से कौन आएगा? अम्मार भाई। अम्मार भाई जी आ जाइए। मकसूद हुसैन भाई भी आ जाइए, अम्मार भाई भी आ जाइए। आपको दो बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, इन बोर्ड्स को आपने सीधा करना है। इन पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं, गौर से पढ़िएगा और इसका रेफरेंस सामने बॉक्स से आपको तलाश करना है। 60 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा। याद रहे, आपकी पूरी टीम की नैया आपके कांधों पर है। कोशिश कीजिएगा कि आप कुरान पाक के पारे का रेफरेंस, सूरत का नाम और आयत रेफरेंस, ये तीनों चीजें सही सही तलाश कर लें। दोनों टीम्स रेडी हैं? जी जनाब, आप दोनों का टाइम शुरू होता है अब। बुलावा गया शहरे नबी से मेरा यारो, बुलावा गया शहरे नबी से मेरा यारो, बुलावा
माशाल्लाह। जनाब टीम पाक पतन अपना रेफरेंस बहुत जल्दी लगा चुकी। आपके पास आयत थी क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 55। चलें जनाब, पाक पतन की टीम का हमने रेफरेंस चेक कर लिया है। बढ़ते हैं टीम मानसेहरा की तरफ, फिर दोनों का रेफरेंस बताएंगे, किसका दुरुस्त किसका गलत या दोनों का दुरुस्त। जी आयत थी टीम मानसेहरा के पास अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला, पारा 19 सूरह फुरक़ान आयत 24। जी जनाब, दोनों टीमों को इंशाअल्लाह आरजी फर्जी वीजा पेश किया जाएगा। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह हमें भी ये सफर नसीब फरमाए। आज हमारी टीम्स के हाथों में फर्जी वीजा है, दिल की खुशी कैसी है ये तो इन्हीं का दिल जानता है। हम दुआ करते हैं एक काश के जल्द इनके हाथों में हकीकी वीजा हो और ये उम्रा और हज का सफर शुरू करें। अल्लाह आपको हकीकी हज और उम्रा नसीब फरमाए। चले जनाब, बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट, क्योंकि ये बाबरकत और मुबारक जर्नी है। अब ज़ौक़ में भी इजाफा होना चाहिए, हमारे इश्क़ रसूल में भी इजाफा होना चाहिए। तो अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अशार पूछे जाएंगे और जो टीम दुरुस्त जवाब देगी उनको इंशाअल्लाह हम टिकट देंगे, फर्जी टिकट, ठीक है, जिसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा फर्जी टिकट। वीजा के बाद टिकट का इंतजाम करना होता है, तो इंशाल्लाह दोनों टीमों को फर्जी टिकट पेश किया जाएगा। सेगमेंट का नाम होगा जनाब मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मुझको दरपेश फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है, नेकियों का नहीं कोई तो शाफकत, नेकियों का नहीं कोई तो शाफकत, मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जब भी हज और उम्रा का इरादा करें, जब भी सफ़र की तैयारी करें तो कोशिश करें कि तैयारी में साथ साथ कुछ ऐसे सना खान इस्लामी भाइयों के कलाम को भी शामिल किया जाए ताकि सफ़र में आपके ज़ौक़ में इजाफ़ा होता रहे, आपके शौक़ मदीना में इजाफ़ा होता रहे। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। दोनों टीमों से एक एक सवाल होगा, दुरुस्त जवाब आपकी टीम को फ़र्जी टिकट दिलवाएगा। पाक पतन आपके लिए सवाल है, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं? मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं? हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़िज़ा संजीदा संजीदा। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस कहते किसको है? हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा। सुभान अल्लाह
سبحان اللہ, بہت ہی پیارا کلام ہے ماشاءاللہ. ٹیم پاک پتن ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیابی پا چکی ہے. بڑھتے ہیں مانسیرا کی ٹیم کی طرف. یہی کلام ہے اور اسی کلام کا ایک شعر ہے کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کہاں میں اور کہاں یہ راستہ پیچیدہ پیچیدہ. کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. جواب یہ بھی درست دیا ہے. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ, کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. جانے والوں ضرور مکے مدینے جایا کریں, لیکن یاد رہے یہ وہ بابرکت اور مبارک جگہ ہے کہ جہاں قدم قدم پر ذوق ہونا چاہیے, جہاں قدم قدم پر احتیاط ہونی چاہیے, قدم قدم پر وہاں بابرکت اور مقدس زمین کا تقدس کا خیال ہونا چاہیے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کچھ ناظرین سے بھی بات کرتے ہیں, چند کال دے دیجئے. محمد حمزہ رضا عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. یوسف بھائی, مجھے عمرے کرنے کا بہت شوق ہے. میں عمرے کا طریقہ سیکھ رہا ہوں. آپ دعا کیجئے کہ ہم سب گھر والے مدینے چلیں. آمین آمین. اللہ ہم سب کو بار بار مکے مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے, با ادب حاضری نصیب فرمائے. اور میری دعا ہے اللہ آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ ہر سال حج نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. جی یہ بہت زبردست آپ کا پروگرام جا رہا ہے. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. مدینے میں دیکھ رہے ہیں آپ کو تو بھائی یہاں پہ اہل مدینہ بھی خوش ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کے. مدینے میں حاضر ہیں. یہ پروگرام آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست, خاص طور پہ جو مکے مدینے پہ آپ نے حج پہ کیا نا, وہ بہت زبردست رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. کیا بات ہے. جی ایک اور کال دے دیں. پیر فیضان چشتی اپنے جد امجد حضور زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر پاپتن شریف سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد یوسف سلیم عطاری صاحب کا پروگرام حاضر ہے. ہم مدنی چینل پر دیکھنے کا موقع ملا. انتہائی احسن انداز کے ساتھ دین کا علم لوگوں تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے. دوسری جو اس پروگرام کو باقی سب سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حرمین شریفین کے مناظر اور طریقہ کار جس جدیدیت اور جس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. واقعی جب یہ مناظر بندہ دیکھتا ہے تو دل بندے کا مچل اٹھتا ہے اور دل باغ مدینہ بن جاتا ہے. اللہ کریم اس پر مولانا محمد یوسف سلیم کو برکتیں عطا فرمائے اور جس جذبے شوق اور ولولے کے ساتھ وہ دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو مزید دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پروگرام لازمی طور پہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے جس کے ذریعے نوجوان نسل میں بچوں میں اور بزرگوں کے اندر ایک دین کا جذبہ اور دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آج کے پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے شہر پاپتن شریف کی ٹیم بھی آج کے مقابلے کے حاضر ہے. اللہ کریم ان کو کامیاب و کامران فرمائے اور اللہ کریم دین و دنیا کی ان کو برکات نصیب فرمائے. آخر میں مدنی چینل اور ان کی ٹیم اور دعوت اسلامی کے روح رواں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ان کا سایہ عالم اسلام پر تا دیر قائم و دائم فرمائے.
आमीन 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 माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे जज्बात के साथ, इतने प्यारे अंदाज के साथ और इतनी प्यारी दुआओं के साथ हमारी हौसला अफजाई भी की, अपनी टीम को सपोर्ट भी किया। अल्लाह आपकी हमें बरकत नसीब फरमाए। माशाल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ानदान से हैं। अल्लाह करीम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान हमें भी नसीब फरमाए। जी एक और वीडियो कॉल। मदनी चैनल का प्रोग्राम हम हाजिर हैं, एक शानदार सिलसिला मदनी चैनल की टीम लेके आई है और इस सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी मानसरा की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है। हमारी टीम के सामने माशाल्लाह बड़ी मजबूत तैयारी है और ये फुल एक्साइटेड है अपने जीत के लिए और पुरअज़्म है अपने मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए। हम दुआएं कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए और मदनी चैनल की टीम को भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए। चलें जनाब, मानसरा की टीम के लिए भी सपोर्टर वीडियो आ चुकी है। अल्लाह हमारी मानसरा की टीम को भी कामयाबी अता फरमाए। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। बहुत ही प्यारा सेगमेंट जो हमें उम्रा स्टेप की तरफ बढ़ाएगा। सेगमेंट का नाम है तवाफ़े खाना काबा, अजब दिलचस्प मंजर है। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, तसद्दुक़ हो तसद्दुक़ हो रहे हैं लाखों पर्दे गिर्द फिर कर तवाफ़े खानाए काबा, अजब दिलचस्प मंज़र है तवाफ़े काबा, अजब दिलचस्प मंज़र है हुज़ूरे काबा हाज़िर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोनों टीम्स ने जनाब फ़र्ज़ी वीज़ा भी हासिल किया, फ़र्ज़ी टिकट भी हासिल किया। अब आइए एनिमेशन के ज़रिए आपके सफ़र को भी शुरू करवाते हैं। जब वीज़ा और टिकट दोनों आ जाए तो फिर सफ़र कैसा होता है स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए फिर कौन करता है कमाल, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। जी जनाब, अब आपका सफ़र शुरू होता है तो फिर अब उम्रा के लिए किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। आइए आज के प्रोग्राम में हमारे जो स्टेप्स हैं पहले उनको देखते हैं, उसके बाद मुकाबले का आगाज करते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हुदूद हरम, हाजिर है काबे पर पहली नजर, जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिक्र होगा हजर अस्वद, सरज़मीने पाक का, इस्तिलाम में है बरकत रखी हर एक जहाँ, तवाफ के चक्कर, जिसमें है बरकत रखी हर एक, तवाफ के बाद के नफिल और दुआ, के करते हैं चलो रोशन मकाम इब्राहिम, देखते मुल्तज़म, मालिको मौला कदर, बाबे काबा, हाजिर है मुसल्ला जिब्राईल, हाजिर है हम, रुकन इराकी, हाजिर है हतीम, रहनुमा मीज़ाब रहमत, हम कुरान से, रुकन शामी, रहनुमाई लेंगे मुस्तजार, कुरान से, रुकन यमानी, फैजान नबी मुस्तजाब, से पाएंगे सफा पहाड़, शान से मीलेन अख्दरें, चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मरवा पहाड़, तकसीर या हलक। जी जनाब, ये 24 स्टेप्स हमारी टीम्स ने उबूर करने हैं। दोनों टीम्स का सफ़र कैसे होगा? दोनों टीम्स के पास काउंटर, डिजिटल काउंटर लगे हैं। 3 नंबर का काउंटर है। टीम अपने आप खुद से ही
काउंटर को प्ले करेंगे और स्टॉप करके नंबर हमें बताएंगे कि किस नंबर का सवाल उनसे किया जाएगा। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती जाएगी, जिस स्टेप पर पहुंचती जाएगी, उसी स्टेप का हम सवाल निकालते रहेंगे। दुरुस्त जवाब आपको उसी मकाम पर पहुंचाता जाएगा। टीम पाक पतन से आगाज करते हैं। काउंटर चलाइए, देखते हैं पहला सवाल आपके लिए किस स्टेप से करना है हमें। जी जनाब, नंबर 1 पहले स्टेप का सवाल है। पहला स्टेप है एहराम। एहराम में जो काम मकरूह हैं उनमें से चंद बताएं। एहराम में जो काम मकरूह हैं उनमें से ये है बालों में कंघी करना, जिस्म और बालों को साबुन से धोना, खुशबूदार फल जैसे लेमू, नारंगी वगैरह को खाना, और इसके अलावा खुशबूदार दुकान पर जाना ताकि खुशबू आए, और सर को खुजाना जिससे बाल गिरने और जू गिरने का अंदेशा हो। जी जनाब, जिस्म का मेल छुड़ाना ये भी मकरूह है। बाल या जिस्म साबुन वगैरह से धोना ये भी मकरूह है। कंघी करना, इस तरह बाल खुजाना कि बाल टूटे या जू गिरने का अंदेशा हो। कुर्ता या शेरवानी वगैरह पहनने की तरह कंधों पर डालना, जानबूझकर खुशबू सूंघना, खुशबूदार फल या पत्ता मसलन लीमू, पुदीना, नारंगी वगैरह सूंघना। याद रहे खाने में मुजायका नहीं। इत्र फिरोश की दुकान पर इस नीयत से बैठना कि खुशबू आए, महकती खुशबू हाथ से छूना जबकि हाथ पर ना लगे, वरना यह हराम है। मज़ीद मालूमात के लिए आप रफ़ीकुल हरमैन भी देख सकते हैं और रफ़ीकुल मुअतमिरीन से भी आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। चलें जनाब, जैसे जैसे टीम जिस स्टेप पर बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह आपको एनिमेशन के ज़रिए वो स्टेप दिखाया भी जाता रहेगा। पाक पतन की टीम हमारे पहले स्टेप पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। बढ़ते हैं टीम मानसेरा की तरफ। जी जनाब, नंबर 2 दूसरा स्टेप है और दूसरा स्टेप है हमारा मीक़ात। सवाल है आपसे, बताइए क्या इहराम के लिए नियत शर्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहराम के लिए नियत शर्त है। अगर किसी ने बग़ैर नियत के लब्बैक कहा तो इहराम ना हुआ। इसी तरह सिर्फ नियत भी काफ़ी नहीं है जब तक उसके साथ लब्बैक या उसके कायम मकाम कोई और चीज़ ना हो। याद रहे कि इहराम के लिए नियत शर्त है। आपने इहराम बांधा और अब आप सफ़र शुरू कर रहे हैं तो आपने मीक़ात आने से पहले पहले नियत करनी है और नियत के साथ एक बार लब्बैक कहना ये ज़रूरी है और 3 बार कहना ये सुन्नत है। इसी तरह अगर तन्हा आपने सिर्फ नियत कर ली तो ये तन्हा नियत भी काफ़ी नहीं और जब तक के लब्बैक या इसके कायम मकाम कोई और चीज़ ना हो। अल्लाह हमें इहराम भी नसीब फरमाए, नियत भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त है जनाब। एहराम की हालत में वो सामने काबे के, एहराम की हालत में वो सामने काबे के इफ्तार कराएगा, इफ्तार कराएगा। मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। वो हज पे बुलाएगा, वो हज पे बुलाएगा। मैं काबे को देखूंगा, वो
इंशाअल्लाह हम भी दुआ करते हैं कोई हज का सबब अब बना दे, मुझको काबे का जलवा दिखा दे, दीदे अरफा तो दीदे मिना की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। बढ़ते हैं टीम पाक पतन की तरफ, पहले स्टेप पर मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर चलाइए। फैजान भी ज़ीशान से पाएंगे। 2 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब, तीसरे स्टेप तक पहुंच पाएंगे। और तीसरा स्टेप हमारा है हुदूद हरम। हुदूद हरम के हवाले से आपकी टीम से सवाल है। टीम पाक पतन बताइए, हुदूद हरम में तर घास उखेड़ना कैसा है? खाना काबा के जो हदूद हरम है वो कई कोस तक उसमें जंगल है, उस जंगल में से घास उखाड़ना या फिर वहशी जानवरों पर तकलीफ़ देना ये हराम है। याद रहे मक्का मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द कई कोस तक हरम का जंगल है, हर तरफ इसकी हदें बनी हुई हैं। इन हदों के अंदर तर घास उखेड़ना, वहाँ के वहशी जानवरों को तकलीफ देना भी हराम है। अल्लाह हमें हरम का अदब नसीब फरमाए। चलें जनाब, बढ़ते हैं टीम मानसेरा की तरफ। जी जी जनाब, 3 नंबर मानसेरा की टीम ने निकाले हैं। ये बढ़ेंगे 5वें स्टेप तक और 5वां स्टेप हमारा है मताफ। मताफ तक पहुंचने के लिए आपको मताफ के हवाले से सवाल का जवाब भी देना होगा। बताएंगे इज्तिबा किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चादर सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकाल कर उसके दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर इस तरह डाल लेना कि सीधा कंधा खुला रहे। जी नाजरीन, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ेगी आपको हम एनिमेशन के जरिए टीम की लोकेशन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। हमारी मानसेरा की टीम पहुंच चुकी है 5वें स्टेप मताफ पर। मताफ में अगर आप उम्रा के लिए हाजिर हुए हैं, उम्रे का अब आपने तवाफ करना है, तो अब उम्रे के तवाफ के लिए आपको इज्तिबा भी करना है। इज्तिबा आपके इहराम की चादर को अपने सीधे हाथ के बगल के नीचे से निकालकर उल्टे कंधे पर डाल देंगे, यानी आपका सीधा कंधा ये बगैर कपड़ों के हो जाएगा। ये मर्दों के लिए है। याद रहे 7 चक्कर आपने इसी अंदाज के साथ तवाफ के लगाने हैं। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। को जैसे समंदर समेटे, कतरे को जैसे समंदर समेटे, मुझको मताफ अपने अंदर समेटे, जैसे समेटे आगोश मादर, जैसे समेटे आगोश मादर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, पाक पतन की टीम से जो पिछला सवाल हुआ था वो तीसरे स्टेप का हो गया था, लेकिन आपका जो नंबर आया था वो 3 नंबर आया था, यानी हमने आपसे चौथे स्टेप का सवाल करना था। गर्चे के तीसरे का सवाल हुआ है, लेकिन हम आपको चौथा स्टेप ही कंसीडर करेंगे। मजीद चौथे स्टेप से आगे का आपने सफ़र करना है। एक मरतबा फिर काउंटर चलाइए और चौथे स्टेप से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। काउंटर स्क्रीन पर दिखाइए जनाब। ये 2 नंबर निकाले हैं जनाब। छठे स्टेप तक पहुंच सकेंगे। छठा स्टेप हमारा है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद के हवाले से सवाल है टीम पाक पतन। बताइए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरे अस्वद को मुखातब करके क्या इरशाद फरमाया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत असवद को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ तो एक पत्थर है और नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, और मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूमते हुए तुमको देखा। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुमको ना चूमा होता तो मैं कभी तुमको ना चूमता। अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए हजरे अस्वद, मैं जानता हूँ तू पत्थर है, फायदा व नुकसान का मालिक नहीं। अगर मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो तुझे कभी ना चूमता। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत हमारे सहाबा को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थी। अल्लाह हमें भी हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। भेजा
जन्नत से तुझको खुदा ने भेजा है, जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है, तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है टीम मानसेरा वालों की। 5वें स्टेप पर आप मौजूद हैं। 5वां स्टेप हमारा है मताफ। मताफ से आगे का आपने सफर तय करना है। काउंटर चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक नंबर आया है जनाब। थोड़ा सा इसको सांस लेने दिया करें, काउंटर को चलने दिया करें, ताकि कुछ नंबर स्क्रॉल हो जाएं और फिर उसको आप पुश करेंगे तो ये कुछ बड़े नंबर भी शायद आपको दिलवा दे। एक स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब, 6ठे स्टेप तक पहुंचेंगे और 6ठा स्टेप हमारा है हजरे अस्वद। शेर मुकम्मल करेंगे। शेर है हजरे अस्वद काबा ए जानो दिल, यानी मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम, यानी मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुस्तजाबो मताफ पर देखो, मुस्तजाबो मताफ पर देखो, बारिश अल्लाह के करो की है, बारिश जी जनाब, बढ़ते हैं टीम पाकपतन की तरफ। टीम पाकपतन आगे बढ़िए, काउंटर चलाइए। सभी इसको की करें कोशिश, सभी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब। 7वां स्टेप होगा और स्टेप का नाम है इस्तिलाम। बताइए हजरे अस्वद के इस्तिलाम की क्या फजीलत है? हजर असद की इस्लाम की फजीलत ये है कि हदीस पाक में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका इस्लाम किया करते और अपने रुखसार मुबारक को इस पर रखा करते और इसका बोसा लिया करते। हमने आपको जो रुकने में जवाब हजर अस्वद दोनों खताओं को मिटाते हैं। जी, मेरे पास जो जवाब लिखा है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि रोज़े क़यामत ये पत्थर उठाया जाएगा, इसकी आंखें होंगी जिनसे देखेगा, ज़बान होगी जिससे कलाम करेगा, जिसने हक के साथ उसका इस्तेलाम किया उसके लिए गवाही देगा। ये जवाब आप नहीं दे सके, लिहाजा आप अपने पिछले स्टेप 6ठे स्टेप तक ही रहेंगे। निसाब का जवाब हमें दरकार होगा जनाब। बारी है टीम मानसेरा वालों की। टीम मानसेरा वाले भी 6ठे स्टेप पर मौजूद हैं। आगे बढ़ने का चांस दिया है टीम पाकपतन ने। टीम मानसेरा कितने नंबर निकालती है और क्या ये जवाब दुरुस्त दे पाती है? मिलके करते हैं। 3 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब और 3 स्टेप आगे बढ़कर आप पहुंच सकेंगे 9वें स्टेप पर। और 9वां स्टेप है तवाफ के चक्कर के बाद 2 रकात नफिल और दुआ। सवाल है आपसे, बताइए क्या तवाफ उम्रा के अलावा जो नफली तवाफ किया जाए उसके बाद भी मकाम इब्राहिम पर नवाफिल अदा करना जरूरी है? तवाफ यानी काबा के गिर्द 7 चक्कर बतौर नियत इबादत तवाफ लगाने पर 7 चक्कर लगाना बतौर नियत इबादत लगाने पर 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। लिहाजा कोई भी तवाफ़ हो, लिहाजा नफली तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़ना वाजिब है। जी जनाब, तवाफ कोई भी हो, जिस तवाफ में आप इबादत की नीयत से 7 चक्कर लगाएंगे तो उसके बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना ये वाजिब है, ज़रूरी है। इसे पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। जवाब टीम मानसेरा ने दुरुस्त दिया है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, माशाअल्लाह। जी, बारी है टीम पाकपतन की। 3 नंबर आए हैं जनाब। बताइए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मकाम इब्राहिम के पास क्या करने का हुक्म इरशाद फरमाया है? अल्लाह पाक ने
अल्लाह पाक ने मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। मकाम हज़रत पिदर सा मेहरबा पाया कलेजे से लगाने को हतीमा गोशे मारे है हुजूरे काबा हाज़िर है और जो है बत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ ये घर रहमान का घर है चले आओ चले आओ ये घर रहमान का घर है हुजूरे काबा हाज़िर है। मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। बारी है हमारी टीम मानसेरा की। टीम मानसेरा, आपने आगे बढ़ना है 9वें स्टेप से। काउंटर चलाएंगे, 9वें स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। देखते हैं मालिको मौला कदर जी, 2 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे और आप पहुंच सकेंगे 11वें स्टेप पर। 11वां स्टेप हमारा है मुल्तजम। सवाल है, या वाजिदू या माजिदू ला तुजिल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया, इस दुआ की क्या फजीलत है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब भी चाहता हूँ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखूँ तो मैंने उनको मुल्तज़म के पास लिपटे हुए ये दुआ पढ़ते हुए देखा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमान, मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमान, अदबो शौक कया बाहम उलझना देखो, अदबो शौक कया बाहम उलझना देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे हरम पाक की तो क्या बात है। वहाँ का हर कोना, हर गोशा बाबरकत और मुबारक है। लेकिन अगर बात की जाए मुल्तज़म की, तो बहुत ही रूहानियत वाला मकाम है, बहुत ही बाबरकत मकाम है। अल्लाह नसीब करे तो इससे हमें सीना लगाना चाहिए, इससे चिमटना चाहिए। लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा कोशिश करें कि जब भी जाएं तो किसी को धक्का ना लगे, किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो। यकीनन बाबरकत और मुबारक जगह है, लेकिन लोगों का ख्याल रखना ये भी ज़रूरी है। ये किस जगह पर ऐन वाक़ है, ये हमने एनिमेशन के ज़रिए आपको दिखाया है। हमारी टीम की लोकेशन आपको बताएगी कि हमारा ये मकाम जिसके हवाले से सवाल और गुफ्तगू की जा रही है वो ऐन कहाँ पर है। आपकी नज़रें स्क्रीन पर होगी तो इंशाअल्लाह आप इस बाबरकत और मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत भी कर सकेंगे। कई सारे ज़ायरीन जब हज व उम्रा के लिए जाते हैं तो बहुत सारे मकामात का जिक्र सुना ज़रूर होता है, लेकिन वो मकाम ऐन है कहाँ पर बहुत सारे नाज़रीन को पता नहीं होता। तो इंशाअल्लाह आप प्रोग्राम गौर से देखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी नई मालूमात आपको मिलेंगी। बारी है पाकपतन की टीम की। पाकपतन की टीम 9वें स्टेप पर मौजूद थी और अब मजीद आगे का आपने सफ़र तय करना है। काउंटर चलाइए और आगे बढ़िए। 3 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब टीम पाकपतन वाले और पहुंच सकेंगे 12वें स्टेप पर। 12वां स्टेप हमारा बहुत ही बाबरकत और मुकद्दस है। स्टेप का नाम है बाबे काबा। बताइए क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबाए मुअज़्ज़मा के अंदर नमाज अदा फरमाई है? जी हाँ,
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کے اندر نماز ادا فرمائی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کے اندر نماز ادا فرمائی ہے۔ اب ہم کعبہ معظمہ کے اندر یوں تو بظاہر گیٹ سے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ نصیب کرے حتیم میں اگر جس نے نماز پڑھی وہ بھی ایسا ہے کہ اس نے عین کعبۃ اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ اللہ ہمیں حتیم پاک میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ بابو چلیں جناب، باری ہے ٹیم مانسیرا کی۔ ٹیم مانسیرا 11ویں سٹیپ پر ہے، ٹیم پاک پتن 12ویں سٹیپ پر ہے۔ کوئی فرق بہت زیادہ نہیں، صرف 1 نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ٹیم مانسیرا کا کاؤنٹر کتنے نمبر آگے لے جا سکتا ہے۔ جی 3 نمبر نکالے ہیں جناب۔ ٹیم مانسیرا نے پہنچ سکیں گے 15ویں سٹیپ پر، اور 15واں سٹیپ آیا ہے حتیم۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی مقدس سٹیپ ہے۔ بتائیے کیا کسی انسان کا نام حتیم رکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان کا نام حتیم رکھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حتیم تھا۔ جی جناب، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حتیم تھا۔ یقیناً صحابی کے نام پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ جواب ٹیم نے بالکل درست دے دیا ہے۔ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، پر جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی باری ہے پاک پتن والوں کی، کاؤنٹر چلائیے۔ مالک و مولا قدر حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے ہم، حاضر ہے، حاضر۔ ایک سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، 13ویں سٹیپ تک پہنچیں گے۔ 13واں سٹیپ نیم ہے مصلی جبرائیل۔ شعر مکمل کیجئے۔ کہتے ہیں جبرائیل بہت میں نے کی تلاش، کہتے ہیں جبرائیل بہت میں نے کی تلاش۔ تجسا جہاں میں کوئی تاجور نہیں، تھوڑا سا درست کریں گے۔ تجسا جہاں بھر میں کوئی تاجور نہیں، تجھ سا جہاں بھر میں کوئی تاجور نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا یہی بولے سدھرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ یہی بولے
سبحان اللہ. جی جناب باری ہے ٹیم مانسیرا کی. مانسیرا کی ٹیم پہنچی ہے 14ویں اسٹیپ پر. 14 اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کرنا ہے. کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. حاضر ہے ہم سیکھنے کے واسطے. 3 نمبر نکالے ہیں جناب. ایک مرتبہ پھر ٹیم 3 اسٹیپ آگے بڑھ سکے گی اور پہنچ سکے گی 17ویں اسٹیپ پر. 17واں اسٹیپ ہے رکن شامی. بتائیے رکن شامی کو شامی کیوں کہتے ہیں؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانہ کعبہ کا یہ کونا ملک شام کی طرف ہے. اس مناسبت کی وجہ سے اس کو رکن شامی کہتے ہیں. کعبہ مشرفہ کے 4 کونے ہیں جناب. چاروں کے الگ الگ نام ہے. پہلے کا نام ہے رکن اسود, دوسرے کا نام ہے رکن شامی, تیسرے کا نام ہے رکن عراقی, چوتھے کا نام ہے رکن یمانی. یوں 4 کونے ماشاءاللہ کعبہ مشرفہ کے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے اپنی ٹیم کی لوکیشن کے ذریعے بھی آپ کو بتائیں کہ رکن شامی یہ کس سمت آتا ہے. ٹیم کی لوکیشن دکھائیے اینیمیشن کے ذریعے اور ہم دیکھتے ہیں رکن شامی کیسے نظر آتا ہے. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ ہمارے پاس ویڈیو کالز آئی ہوئی ہیں, آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ حاضر ہے میں ہماری پاک پتن کی ٹیم شامل ہے. انشاءاللہ ہماری پاک پتن کی ٹیم اس دفعہ ون کرے گی انشاءاللہ. چلیں جی ایک اور کال دے دیں. مدنی چینل کا پروگرام حاضر ہے بہت اچھا ہے. اس سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے مدینہ شریف کی حاضری کی طرف پیدا ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ. میسیج حاضر ہیں. ہم نے پروگرام دیکھ کر علم میں بہت سارا اضافہ کر دیا ہے. یہ قربان بھائی ہیں رحیم یار خان سے. اسی طرح ایک میسیج ہے کہ حاضر ہیں ہم پروگرام دیکھ کر حج اور عمرہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک اور میسیج ہے حاضر ہے ہم دیکھ کر اللہ اور رسول کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے. ہم نے کوشش کی ہے عمرہ زائرین کو عمرہ اسٹیپس کے ذریعے بتایا جائے کہ کن کن اسٹیپس کو فالو کر کے آپ اپنا عمرہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. باری ہے ٹیم پاک پتن کی, کافی پیچھے رہ گئی ہے. ٹیم مانسیرا 17ویں اسٹیپ تک پہنچ چکی ہے اور آپ کا اسٹیپ نمبر ہے ابھی تک 13. کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در حاضر ہے. 3 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم پہنچے گی 13ویں اسٹیپ سے 3 اسٹیپ آگے یعنی 16ویں اسٹیپ پر, اور 16واں اسٹیپ ہمارا ہے میزاب رحمت. بہت ہی پیارا اسٹیپ ہے. شعر مکمل کیجئے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. جواب درست دیا ہے جناب. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. سبحان اللہ
सुभान अल्लाह। यादें मक्का और मदीना ताज़ा कर रहे हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि इस बार हमारे हाजरीन को भी, हमारे कंटेस्टेंट्स को भी और हमारी टीम को भी मशरूब मदीना भी पेश किया जाए, ताकि मक्का मदीना की उस फीलिंग का भी एहसास लिया जाए। अल्लाह हमें मक्का मदीना में बैठकर गावा मदीना पीने की सआदत नसीब फरमाए। चले जनाब, बारी है टीम मानसेरा वालों की। टीम मानसेरा काउंटर चलाएंगे और 17वें स्टेप से आगे का सफर तय करेंगे। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। 3 नंबर निकाले हैं जनाब। कोई 3 नंबर से दोस्ती तो नहीं कर ली आपने? कोई ऐसे तार तो कनेक्ट नहीं कर लिए जो 3 नंबर बार बार आपके लिए आ रहे हैं? माशाल्लाह। चले जनाब, 3 स्टेप आगे बढ़ सकेगी टीम। टीम मानसेरा 17वें स्टेप से पहुंचेगी 20वें स्टेप पर, और 20वां स्टेप है हमारा मुस्तजाब। मुस्तजाब किसे कहते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकन यमानी और रुकन अस्वद की दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। रुकने यमानी और रुकने अस्वद की दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। और रिवायतों में आता है कि यहाँ पर दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मौजूद होते हैं। अल्लाह हमें इस दीवार पर भी दुआ करने की सआदत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। या इलाही जो दुआएं ने हम तुझसे हमारी टीम पाक पतन 16वें स्टेप पर मौजूद है और मजीद आगे का सफर तय करेंगे जनाब। काउंटर चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर आए हैं जनाब। 19वें स्टेप तक पहुंचेगी टीम रुकने यमानी। स्टेप का नाम है रुकने यमानी। आपसे 19वें स्टेप का सवाल बताइए, रुकने यमानी की फजीलत क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुकन यमानी का इस्तेलाम करते, बोसा देते और अपना चेहरा अनवर रुकन यमानी पर रखते थे। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैंने तूर का था रुकन यमानी में फरो, मैंने तूर का था रुकन यमानी में फरो, सुभान अल्लाह। रुकने यमानी और रुकने अस्वद के बीच वाली दीवार ये मुस्तजाब की दीवार है, ठीक है। अब ये जो रुकने यमानी है ना, इसकी भी बड़ी फजीलत है। जैसा कि हमारी टीम ने हमें एक रिवायत सुनाई, इसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजर अस्वद और रुकने यमानी ये दोनों खताओं को मिटाते हैं। अब नाजरीन, हजर अस्वद का बोसा यकीनन क्वाइट डिफ़िकल्ट हो गया है, और आज के दौर में मैं समझता हूँ कि बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए अगर लाइनें ना लगी हों, कोई इंतज़ाम ना हो, तो फिर हजर अस्वद का बोसा लेना ये नामुमकिन सी बात हो चुका है। लेकिन रुकने यमनी ये काबा मुशर्रफा का ऐसा कोना है कि अगर आप कोई ऐसा मखसूस टाइम देखें कि जहाँ पर रश कम होता है, तो इसका बोसा लेना हजर अस्वद के बोसे लेने से दर्जे कदरे आसान है। तो कोशिश करें कि इस कोने का भी बोसा लें, इसकी भी बरकतों से मुस्तफीज हों। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जी जनाब, टीम मानसेरा 20वें स्टेप पर है, टीम पाक पतन 19वें स्टेप पर है। 4 स्टेप अब सफर बाकी है। देखते हैं मानसेरा का सफर कहां तक आगे बढ़ता पाता है।
ٹیم مانسرا نے ایک مرتبہ پھر نمبر 3 نکال لیا ہے جناب اور پہنچے گی 23ویں اسٹیپ پر. 23واں اسٹیپ کا نام ہے مروہ پہاڑ. بتائیے مروہ پہاڑ سے اترتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم استعملنی بسنت النبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتوفنی علی ملتہ اللہم استعملنی بسنت النبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتوفنی علی ملتہ وأعوذ بک من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین. وَأَعُوذُ بِكَ نہیں اللہم استعملنی بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم وتوفنی علی ملتہ وأعذنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت خوبصورت دعا ہے جناب. اے اللہ عز و جل تو مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا تابع بنا دے اور مجھے ان کے دین پر موت نصیب فرما اور مجھے پناہ دے فتنوں کی گمراہی سے اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہ ہمیں یہ دعا مروہ پہاڑ پر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جواب ٹیم کا درست مان لیتے ہیں. مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے اپنی الفت دل میں بسا دے بغیر صفا اور بغیر مروہ بغیر صفا اور بغیر مروہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین آمین آمین. اچھا ناظرین عمرہ زائرین کو یا حجاج کو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اب ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے کسی بھی طریقے سے ہمارے جو اسٹیپس ہیں ہمارے جو ارکان ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں جلدی جلدی ہو جائیں. حالانکہ سمجھ نہیں آتا کہ نہ ان کو وہاں سے کوئی کام پہ جانا ہے نہ وہاں سے کوئی ان کو نوکری پر جانا ہے نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو عمرہ کرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے لیکن بس ایک جو سر پر بوجھ سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے تو ایسا ہرگز نہ کیا کریں بلکہ آپ ان اسٹیپس کا مزہ لیجئے ان کا لطف لیجئے ایک ایک اسٹیپ پر کھڑے رہ کر دعا کیجئے. صفا مروہ کے دوران دیکھا یہ گیا ہے حالانکہ صفا پہاڑ پر بتایا جاتا ہے کہ 25 سورہ بقرہ کی آیت 25 آیتوں کے برابر وہاں پر کھڑے رہ کر دعا مانگنی چاہیے. تو اب وہاں پر ٹھہرا نہیں جاتا بلکہ جلدی جلدی بس 7 چکر لگانے ہیں سعی کمپلیٹ کرنی ہے اور عمرہ کے ارکان کو پورا کرنا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ عمرہ اور حج کی سعادت پا رہے ہیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے تو ان اسٹیپس کو آپ کوشش کریں کہ انجوائے کریں وہاں پر کھڑے رہ کر اپنے لیے بھی دعا کریں امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی جناب باری ہے ٹیم پاک پتن کی 19ویں اسٹیپ پر موجود ہیں 5 اسٹیپ دور ہیں اپنی منزل سے. دیکھتے ہیں کاؤنٹر کتنے نمبر آگے بڑھا پاتا ہے. 3 نمبر کا ڈیجٹ ہے جناب 3 نمبر کا کاؤنٹر ہے میکسیمم 3 نمبر آ سکتے ہیں. 2 نمبر آئے ہیں 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے 21ویں اسٹیپ تک پہنچ سکیں گے اور 21واں اسٹیپ ہے صفا پہاڑ. صفا پہاڑ کے حوالے سے آپ سے سوال ہے بتائیے صفا پہاڑ سے اترتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم استعملنی بسنت نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توفنی علی ملتہ وأعذنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین. جی جناب اے اللہ عز و جل تو مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا تابع بنا دے اور مجھے ان کے دین پر موت نصیب فرما اور مجھے پناہ دے فتنوں کی گمراہیوں سے اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. جواب درست دیا ہے جناب. صفا اور مروہ کے مابین دوڑو صفا اور مروہ کے مابین دوڑو
सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे नाजरीन की तरफ से बताया जा रहा है, काफ़ी सारी कॉल्स भी हैं, वीडियो कॉल्स भी हैं। आइए चंद वीडियो कॉल्स और कॉल्स भी शामिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के मकबूल आम सिलसिला हाजिर है हम में पाकपतन शरीफ की टीम हिस्सा ले रही है। आज रात के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह पाकपतन शरीफ की टीम शिरकत करेगी। हमारे पाकपतन शरीफ की टीम जो है उनकी तैयारी भी अच्छी है, इस्लामी भाई भी सही है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकपतन शरीफ की टीम हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी और पाकपतन का नाम रोशन करेगी। और ये जो सिलसिला है हाजिर है हम, इसको देखने से हरमैन शरीफैन की मोहब्बत दिल में पैदा होती है और बहुत सारी इस्लामिक मालूमात सीखने को मिलती है। अल्लाह पाक इस सिलसिले को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। चले जनाब, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, टीम के सर पर बोझ बढ़ाने के लिए 3 स्टेप दूर है हमारी पाकपतन की टीम फाइनल स्टेप से, और मानसरा की टीम सिर्फ 1 स्टेप दूर है। अब आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ टीम की तैयारी काफ़ी नहीं बल्कि काउंटर के नंबर्स भी ज़रूरी हैं जो टीम को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। कॉल्स दीजिएगा। हम माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है और इस प्रोग्राम में नौजवानों की इस्लाह हो रही है और मदीना शरीफ की हमारे नौजवानों के दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा जस्तजू पैदा हो रही है। और आज हमारी मानसरा की टीम है तो उसके लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक टीमों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आपका जो प्रोग्राम है हाजिर है हम, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को देखते हुए बंदा अगर सोचे तो ऐसा लग रहा होता है कि अब वीज़ा लग रहा है, अब एयरपोर्ट पर है, अब टिकट हो रही है, तो पूरा जो है ना वो हाज़िर मदीना का जो है ना वो जहन में आ जाता है और पुराना याद आता है सिलसिला देख के। जी एक और कॉल। बहुत शुक्रिया। मैं फजल करीम अत्तारी पाकपतन से बात कर रहा हूँ। हम आपका सिलसिला देख रहे हैं, हाजिर है हम बहुत शौक से देखते हैं मदनी चैनल। आपको अल्लाह ताला मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए और हम पाकपतन की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चलें जी माशाल्लाह। पाकपतन से काफ़ी कॉल्स आई हैं, काफ़ी वीडियो कॉल्स भी आई हैं जनाब। मानसरा की टीम के भी सपोर्ट की कॉल आई हैं और अब दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला चंद मराहिल दूर है। सिर्फ 1 कदम मानसरा की टीम जीत से दूर है और पाकपतन शरीफ की टीम 3 स्टेप्स दूर हैं। बारी है टीम मानसरा वालों की, लेकिन टीम मानसरा वालों को 1 नंबर लाना जरूरी है। याद रहे, अब इनके 3 नंबर आना ये इनको काम नहीं दिलवाएगा, बल्कि अब इनका 1 नंबर आना जरूरी है। जब तक 1 नंबर नहीं आता रहेगा टीम पाकपतन वालों को चांस मिलता रहेगा। जी टीम मानसरा काउंटर चलाइए जी। 2 नंबर चले जनाब। पाकपतन वालों आगे बढ़ने का चांस दिया है, टीम मानसरा ने आपको। काउंटर चलाइए। 1 नंबर आया है जनाब। चले जनाब, 1 नंबर आगे बढ़ सकेगी टीम। टीम आगे बढ़कर पहुंचेगी 22वें स्टेप पर। 22वां स्टेप है हमारा मीले ने अख्तरैन। इन दोनों टीमों ने आपको भी कंफ्यूज किया हो। ऐसा ही है। आज जो है ना वो इन दोनों के इतने सपोर्ट में कॉल आ गई हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं भाई मेरे लिए भी कुछ कॉल कर दें। माशाल्लाह। जी टीम पाकपतन के लिए सवाल है, सफा व मरवा के दरमियान मीले ने अख्तरैन पर दौड़ते हुए किस मंजर को हमें जहन में रखना चाहिए? सफ़ा व मरवा पहाड़ पर दौड़ते हुए इस मंजर को पेश नज़र रखना चाहिए कि जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सहरा में प्यासे थे और हज़रत हाजरा उनके लिए पानी की तलाश में थी। जी जनाब। नाजरीन, अगर हज और उम्रा के स्टेप्स को देखें तो ये प्यारों की प्यारी अदाएं हैं। सफ़ा मरवा 2 पहाड़ हैं, अब इनके दरमियान दौड़ा क्यों जा रहा है? हज़रत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास की कमी को दूर करने के लिए, प्यास को ख़त्म करने के लिए आप पानी की तलाश में कभी सफ़ा पहाड़ की तरफ बढ़ती तो कभी मरवा पहाड़ की तरफ बढ़ती। यूं आपने 7 चक्कर लगाए। अच्छा, ये जो मीले ने अख्तरैन एरिया है, ये वो एरिया था
کہ جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر آنا بند ہو جاتے تھے تو اب ایک ماں کی بے قراری میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ بے چین اور بے قرار ہو جاتی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آپ وہاں پر دوڑ لگا دیا کرتی تھی۔ تو اب تا قیامت اسے عازمین کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمیں جب میلین اخدرین کے درمیان ہم دوڑیں تو ہمیں ان مناظر کو، اس واقعے کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں میلین اخدرین کے درمیان دوڑنا نصیب فرمائے۔ یاد رہے یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کو یہاں پر دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ دیکھا سفار مروا بھی دیکھا، دیکھا سفار مروا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواق سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آمین آمین آمین۔ چلیں جناب، مانسیرا والے ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائیں گے۔ نمبر 1 لانا ہے، کاؤنٹر چلائیے، 1 نمبر لائیے۔ یا پاک پتن والوں کو چانس دیجئے۔ 3 نمبر لائے ہیں جناب، ایک مرتبہ پھر چانس ملا ہے ٹیم پاک پتن کو، آپ کو 2 نمبر لانا ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے 3 نمبر۔ چلیں جی، مانسیرا کو چانس دیا ہے ٹیم پاک پتن نے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر۔ 1 نمبر آ گیا ہے ٹیم مانسیرا کا۔ سوال کرنے سے پہلے کچھ ہمارے حاضرین سے سوال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے، ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز ہونے دیجئے۔ ماشاءاللہ، سوال یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، چلے اشارہ دیتے ہیں کہ ان کے والد بھی نبی ہی تھے اور مشہور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان میں سے ہیں۔ جی چلے ایک بھائی ہمارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ان سے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعقوب علیہ السلام۔ کیا جواب درست نہیں ہے؟ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت فرما لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمیل تاری اسحاق علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ اللہ جی، نبیوں کے نام لیتے رہیں، مدنی قافلے کی نیت کر لیں تاکہ پورا قافلہ تیار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، ان کا جواب درست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کو انشاءاللہ مدینہ شریف کی کشمش پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، باری ہے ہماری ٹیم سے سوال کرنے کی۔ ٹیم مانسیرا آخری سٹیپ پر پہنچ چکی ہے اور 24واں سٹیپ ہے ہمارا حلق۔ حلق یا قصر، بتائیے حلق کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد سر منڈوائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا حلق کرایا اور سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی اور کترانے والوں کے لیے 1 بار۔ جی ہاں ناظرین، سر منڈوانے والوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار دعائے رحمت فرمائی اور بال کتروانے والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اب غور کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں میں اگر حصہ چاہیے تو کوشش کریں اپنے بالوں کی قربانی پیش کریں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ حسن حج کر لیا کعبے سے، جس کرم
रास्ता दिल के अंदर है, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है, हुजूर काबा हाज़िर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानसरा की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। आज का मुकाबला जीत कर मानसरा की टीम अगले मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। टीम पाकपतन दिल छोटा ना करे, क्योंकि आपको भी एक मर्तबा और चांस दिया जाएगा। वो शायर कहते हैं ना हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, ना हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। इंशाअल्लाह मदीने जाने का यकीनन ये प्रोग्राम तो एक बहाना है, असल तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से इजाज़त मिलना है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाज़त देंगे, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए नूर कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम।